Hi, Pankaj Quatra welcomes you in my YouTube channel. Today I will give you the dictation, shortened dictation on current topic. As you know, the current topic dictation is rare on YouTube channels, and students are searching the dictation on current topics. And most of the students practicing from the newspapers editorial for current topic dictation. So let us start with your notebook and pencil. I will give you the dictation at the 100 word per minute speed. After the dictation, I will give you the tips how to improve your vocabulary and how to improve the speed and accuracy in shorthand. Be ready? Start. We achieved our independence in 1947 on the collective strength of this country. Today, all of us are again at a juncture of creating history. We are striving to launch a new movement for ushering in a new era. Our resolve today will determine the shape of the India of 2047 when we celebrate the centenary of our independence. Today, our country is enriched with the experiences of a 72-year journey since independence. The nation is moving ahead only by learning from these experiences. All of us have to move ahead with the resolve to realize the idea of New India by the year 2022 when we celebrate the 75th anniversary of India's independence. Thus, in the New India, in the 75th year of its independence, we resolve for 1. Farmer's income will be doubled. 2. Every poor will have a pakka roof over his head. 3. Every poor will have access to clean fuel. 4. Every poor will have electricity connection. 5. No poor will be compelled to defecate in the open. 6. Every poor will have access to medical facilities. 7. Every village in the country will be connected by roads. 8. River Ganga will flow uninterrupted and pollution free. 9. In collaboration with states, India will be close to becoming a $5 trillion economy. 10. We will be progressing towards joining world's 3 largest economies. 11. An Indian will unfurl the tricolor in space entirely on the strength of indigenous resources. And 12. We will provide leadership to global development with a new zeal and confidence. If the gap between the public and the government is reduced and public partnership is ensured, our countrymen can transform government schemes and programs into mass movements. Parachain, this is the way forward to achieve transformative national goals. Adopting this approach, programs like the Beti Bachao, Beti Padhao and Swachh Bharat Abhiyan evolved into mass movements. On the strength of people's participation, we will also achieve the objective of a new India. It is the belief of my government that political parties, states and 130 crore countrymen are all committed to India's integrated and accelerated development. Our active democracy has also matured adequately. During the last few decades, due to frequent elections being held in some part of the country or the other, the pace and continuity of development programs have been impacted. Our countrymen have demonstrated their wisdom by delivering a clear verdict both at state and national issues. One nation simultaneous elections is the need of the hour, which would facilitate accelerated development, thereby benefiting our countrymen.
With such a system in place, all political parties, according to their respective ideologies, will be able to better utilize their energy towards development and public welfare. Therefore, I urge all members of parliament to seriously think over this development-oriented proposal of one nation simultaneous elections. This year also marks 70 years of adoption of the Indian Constitution. As a member of parliament, all of you have undertaken the oath or affirmation to discharge your duties with true faith and allegiance to the Constitution of India. आज की डिक्टेशन आपने पूरी लिखी होगी और करना क्या है, आपने जो मैं टिप्स आपको देने जा रहा हूं, इस डिक्टेशन को या किसी भी डिक्टेशन को लिखने के बाद आपने इसको ट्रांसक्राइब जरूर करना है। चाहे आप इसको हाथ से लिखें या कंप्यूटर से टाइप कर लें, टाइपराइटर से भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको चेक जरूर करना है। यानी एक बार आपको ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा चेक करने के लिए, और आप इसको पूरा चेक करेंगे और मिस्टेक्स फाइंड करेंगे किस टाइप की मिस्टेक्स हैं। यानी मिस्टेक्स को एनालिसिस करना जरूरी है। मिस्टेक्स आपसे कई तरह की हो सकती है, जैसे कि आपने कहीं एस लगा दिया या कहीं नहीं लगाया, या किसी वर्ड को आपने कुछ और समझ लिया और कुछ और टाइप कर दिया, ए को एन, डा को ए, या कुछ और भी हो सकता है। इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, या फिर आपसे वर्ड्स छूट जाते हैं, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया। इस तरह की मिस्टेक आपसे किस तरह की मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं? ग्रामेलॉग्स की मिस्टेक्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन की हैं, फ्रेज की हैं, तो आप ग्रामेलॉग्स, फ्रेज, कॉन्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर किसी और तरह की मिस्टेक्स हैं, यानी आपका बेसिक क्लियर नहीं है और उस वजह से मिस्टेक्स हैं, तो आप अपने बेसिक की बुक में से एक बार रिवाइज कर लेंगे, कभी कभी उसको रिवाइज करते रहेंगे। या फिर आपकी ग्रामर्स की मिस्टेक्स हैं, आपको पता नहीं लगता, हैज है, एज है, हैड है, इट है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इस तरह की मिस्टेक्स हैं, तो ग्रामर आपको इंप्रूव करनी होगी। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपने सारी मिस्टेक चेक करनी है और उसको एनालाइज जरूर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप डिक्टेशन को लिखें तो आपका ध्यान उसी तरह की मिस्टेक पर आए कि और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये ग्रामर के रूल हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है कि कहाँ फुल स्टॉप यूज होता है, कहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, और ये सारी टिप्स आपको याद रखने। तो आज वाली डिक्टेशन के अकॉर्डिंग आप हर डिक्टेशन में अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव जरूर करेंगे। मैंने बताया था शुरू में कि हमें वोकैबुलरी टिप्स भी देखने हैं। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने से क्या होगा, जब हम डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसक्राइब करते समय वो वोकैबुलरी, वो वर्ड मीनिंग हमारे काम आएंगे, स्पेलिंग भी इंप्रूव हो जाएंगे, और वर्ड मीनिंग पता होने से हम इजीली ट्रांसक्राइब कर सकेंगे। तो आज वाली जो डिक्टेशन है उसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने एन सर्कल किए हैं, आपने वो नोट करने हैं, और आप एक बार सुन लेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से याद रह जाएं कि ये वाले डिक्टेशन में इस तरह के वर्ड्स आए थे। तो पहला जो वर्ड है मैंने एन सर्कल किया, आज की डिक्टेशन में आया है, वो है जंक्चर। जंक्चर का मीनिंग होता है समय, या उचित समय भी कह सकते हैं, अवसर भी कहा जाता है, और इंग्लिश में से मोमेंट कहते हैं, या अपॉर्चुनिटी टाइम भी बोलते हैं। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग आप छांट लेंगे। हर एक्सरसाइज में कुछ अलग अलग वर्ड मीनिंग जो ऐसे होते होंगे जिनके मीनिंग आपको वर्ड्स के नहीं आते होंगे, तो आपने जरूर देखने हैं। और दूसरा जो वर्ड है स्ट्राइविंग, आज वाली डिक्टेशन में स्ट्राइविंग वर्ड आया। स्ट्राइविंग का मीनिंग होता है प्रयास या उद्यम करना, यानी एंडेवर या प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अशरिंग। अशरिंग होता है कायम, हिंदी में इसको कायम बोलते हैं। और दूसरा है न्यू इरा। न्यू इरा का मतलब है नया युग। अक्सर डिक्टेशन में कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होते, और मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसे वर्ड्स छांटे हैं जिनके मीनिंग आपको पता होने जरूरी है। नेक्स्ट है रिसॉल्व।
रिसॉल्व मीन संकल्प या ठानना, डिटर्मिनेशन, इंग्लिश में इसको डिटर्मिनेशन या डिसाइड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेनस। इंडिजेनस अक्सर ये डिक्टेशन में वर्ड आ जाता है। मीनिंग पता होगा तो हम इसको इजीली लिख भी लेंगे, फिर भूलेंगे भी नहीं। जैसे इसका मीनिंग है स्वदेशी, स्थानीय या लोकेल, इनलैंड, होम ग्रोन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सीलरेट, ये मीनिंग, ये वर्ड भी बार बार अक्सर डिक्टेशन में आता है। एक्सीलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना या तेज करना, स्पीड अप या टोन अप भी कह सकते हैं। एक और वर्ड है एडिक्वेट, ये भी बार बार डिक्टेशन में आता है। एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त, सफिशिएंट या उचित भी कह सकते हैं, एप्रोप्रिएट। एक और वर्ड देखते हैं साइमल्टेनियस, आज वाली डिक्टेशन में है। साइमल्टेनियस होता है समकालिक या एक ही समय में होने वाला, कुछ ऐसी घटना जो साथ साथ होती हैं उसको साइमल्टेनियस कहा जाता है। एक और देखते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा, चित्तवृत्ति, मूड या डॉगमा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है अफर्मेशन, डिक्टेशन के एंड में ये वर्ड आया था अफर्मेशन, अभिपुष्टि या समर्थन, बैकअप जिसे कहते हैं, या कंफर्मेशन भी कहा जाता है। एक और वर्ड देखते हैं एलिजियंस। एलिजियंस का मीनिंग होता है निष्ठा, वफादारी, लॉयल्टी या डिवोशन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारा वीडियो देखा होगा और डिक्टेशन आपको पसंद आई होगी और इससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी इंप्रूव होने में पूरे वीडियो से आपको मदद मिलेगी। और आपने ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।